everyone, I am architect Tanya Sikay back with another video another day with again a set of interview, again set of architects and solving all your queries. Today we are going to interview and talk to two very talented and innovative architects. Plus, the very good thing is they are my school college juniors. Please welcome architect Gaurav Shankaran and architect Siddharth. Congratulations, guys, and welcome to the show. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for having us. How are you guys? I'm fine. We are fine. I hope you're fine too. Yes, I am fine too. I hope everybody is fine in this pandemic. This has hit really hard on, especially us architects. सारे काम वाम आधे ज़्यादा बंद हो रखे हैं लोगों के. So this is the new normal actually, like we're meeting on FaceTime or Zoom Yes, calls. of course, Haven't of course. We haven't met for like 2 or 3 years now. Of But- course, of course. After my graduation, obviously, we haven't Socially. met. Obviously. Okay, let us first start with your introduction. Please introduce yourself to everyone. Individually or as a Yes, combined? individually and also as one unit. Okay. So I'm architect Siddharth Gokhale and this is architect Gaurav Shankaran. Hello, I'm architect Gaurav Shankaran. Okay. So our firm stands for the name Space Goals. That has our initials also S and G, Oh, and and the logo that we have made that also indicates S and G in that. Like when we were in second year of our college, we had some thought कि आगे जाके हम लोग साथ में will start our own firm. But it happened very rapidly and what to say like इतना जल्दी हो गया कि मतलब बट हाँ जो भी ये प्रोसेस है जो चल रहा है वो बड़ा अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है. जब हमने तो- सेकेंड ईयर में तभी सोच लिया था, लेकिन कितना जल्दी करेंगे ये बिल्कुल भी नहीं पता था. from being batchmates to friends, from partners in crime, and now partners in an architectural firm. Really, really impressive. Thank you. So, what does your firm offers? What do you have a product line? What are the services do you offer? So currently we are doing all the architectural interior and product designing. We are also into like branding, graphic designing works also we take, and we have residential projects, commercial projects, and hospitality projects going on. Where is your firm right now? In which city are you working? Currently the office setup is in Jabalpur, but we have projects in Indore, Balaghat, and nearby Jabalpur and Indore town city. So right now, right now you're working inside MP. You haven't Yeah. gone outside yet. Okay. Okay. So personally, actually, this is a very special interview because actually I know you both of guys personally, and also I'm a very big fan of your artwork, Gaurav, and I know there might be many people who love your artwork. So I was very happy when two very different set of minds has came together to work together. Space Goals is actually very unique because you have some other set of qualities. Gaurav has some other set of qualities, and I'm sure when they combine together, you might do a blast inside. There might be some very interesting sight coming up. Okay. Definitely. Okay, so tell me about your individual stories when you entered architecture school. Firstly, when I start studying in architecture college, मुझे इतना पता नहीं था आर्किटेक्चर के बारे में. सिर्फ मेरी स्केचिंग अच्छी थी, आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से था, तो एंटर किया. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कॉलेज में आया तो सबसे मेन जो मेरे को लगता है कि जो मैंने फोकस किया था वो था ऑब्जर्वेशन में. सीनियर्स और जो फैकल्टी मेंबर्स थे उन्होंने बताया था कि सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखो चीज़ों. और वो जो एक जो माइंडसेट जो बना था स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर से, जो सबके गाइडेंस जो लिया था उससे, वो आज तक
चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन सबसे बेसिक रूल है आर्किटेक्चर का। हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। तो आपको फिर बीआर्क के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में किसने बताया? फर्स्ट थॉट वैसे तो हाँ मजाक टाइप का है, लेकिन इसमें फर्स्ट थॉट जो मेरे को आया था वो मैं नेशनल ज्योग्राफिक में एक बार बुर्ज अल अरब के बारे में देख रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो Interesting. फर्स्टली वही मेरा सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट था कि आर्किटेक्चर में क्या होता है, तब मैंने पहली बार समझा था। ये 11th क्लास की बात है, और शुरू से आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग सब एक सा ही लगता था। 12th के बाद ही ये सब चीजें पता चली। मैं अभी तक मैं जितने भी लोगों से बात कर चुकी हूँ, और आई केम अक्रॉस मेनी आर्किटेक्ट्स, आई मीट मेनी आर्किटेक्ट्स, क्योंकि मैं हूँ एमपी जबलपुर से, फिर मैंने अपनी इंटर्नशिप इंदौर से की, एंड नाउ आई एम हियर इन जयपुर, done few work, done a job, a couple of job, and now I have actually perfectly settled here in Jaipur. अपनी firm setup करके अब यहाँ काम कर रही हूँ. I met many people around these places, जबलपुर में, इंदौर में, जयपुर में, especially Jaipur. This is a actually very big city. You meet different people. A funny story. मैंने मेरे first dose of vaccination जो है वो architecture camp में लिया. So there was a camp for just architects and their families who can come and take the first dose of vaccination. I met many architects there, and the common thing between almost every architect is हमने architecture ना accidentally किया है. हम actually architecture नहीं, no, not many people actually know what architecture is. क्या होता है? मेरे father का first impression architecture सुन के था, इसको placement मिलेगा या नहीं? I was like, मिलेगा, वहां से नहीं मिलेगा, कॉलेज से हम जरूर शायद कुछ ढूंढेंगे. So that was the first impression. तो अगर पहले से कोई आर्किटेक्चर के बारे में जानता है, then that is a really good thing and really surprising for me because मैं तो नहीं जानती थी architecture. So what about you, Siddharth? How did you came across architecture? So it's a long story. Back in 10th, we had engineering graphics as a optional subject in 11th and 12th. Mm-hmm. So I had planned that I will end up doing civil engineering or architecture. Okay. But after 11th and eventually coming to the end of 12th, I realized that civil engineering also is not my cup of tea. And also I've gone through the subject of architecture online. So I thought, yeah, like इस पे करना चाहिए, इंटरेस्टिंग है, इसमें ज्यादा पढ़ने को नहीं रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा इसमें, इसलिए मोर टुवर्ड्स आर्किटेक्चर अलाइनमेंट हुआ. देन इंजीनियरिंग तो फिर कट ऑफ ही हो गया था, एंड बस देन आई एम हियर नाउ. But eventually आर्किटेक्चर स्कूल में आने के बाद ये तो पता चला कि नहीं भाई, पढ़ना तो पड़ता है, तो लाइक थ्योरी कम पढ़ना पड़ता है, पर फिजिक्स और मैथ्स तो बहुत ही पढ़ना पड़ता है जब स्ट्रक्चर्स पढ़ने में आते हैं. तो eventually you have to study as hard as any engineering student. It's the very toughest profession. I feel like मेहनत बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल मेहनत ज्यादा है, थ्योरेटिकल हाँ मतलब आपको साथ साथ कॉलेज के टाइम में पढ़ना पड़ता है, जरूरी वो चीज भी बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. बट हाँ ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली ओरिएंटेड फील्ड है एंड मेहनत इसमें बहुत ज्यादा है. Architecture is a very hard working field. For everyone, you have to work really hard first to get in, to enter the architecture school and then to survive 5 years of architecture. Oh my God. याद आ गए सारे 5 साल पुराने कॉलेज के. आर्किटेक्चर स्कूल में तो आप आ गए, एंटर हो गए, फर्स्ट ईयर तो ठीक है निकल गया, ग्राफिक्स पढ़ने में ही आधा 1 साल निकलता. Tell me your first encounter to building construction class. Building construction, like after the internship part, what I feel is that we are doing वही पुराना construction techniques and everything, and that should change actually. And what firms actually require now in the current times is they need more like you should know particular software. So if you are starting from the beginning of your college career and if your base is strong, if you know the details properly, then the building construction will be more helpful after the college.
like know the current details like that are going on, and that is not कि particular कोई एक चीज है तो वो वैसे ही होगी. There are many ways you can pursue that. So Of course. it should be very practically oriented, I feel, and I feel that that the building construction जो teaching है that should change a bit. जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तब इतने फ्रेश होते हैं, उस टाइम हमको इतना इमेजिन कर पाना कि प्लान एलिवेशन एक साथ ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट होता है. तो मेरा ये थॉट है कि मोर फोकस जो टीचर्स या फैकल्टीज अभी भी करते हैं कॉलेज में, वो मेनली ड्राइंग्स में करते हैं कि ड्राइंग्स की लाइन विड्थ क्या है, डिटेल्स में करते हैं. जबकि ऐसा मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि उस समय फोकस होना चाहिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आप एज अ मॉडल बना के उस चीज को प्रेजेंट करें, Of course. या इस तरीके से चीजें ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं. So basically आपको कॉलेज में ही बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखानी चाहिए. Correct. तो जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन टेक्निक है या फिर बहुत बेसिक बात करते हैं, कोई कारपेंट्री जॉइनरी है, बहुत बेसिक चीज है ये जॉइनरी. Either you should make a model out of it so that we understand better, or you should just show us practically. What I believe is majorly जो आर्किटेक्चर स्कूल होते हैं वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ होते हैं. I haven't seen actually बहुत there are not many architecture schools which is dedicated just for architecture. Either they will be engineering with the architecture school. तो जब engineering है और जब आपके पास इतने सारे workshops हैं, why not take architecture students also there and show the construction or the technical part, the joinery thing, or whatever you have taught. You should not bound just to theory, no, because architecture is basically about practical and not theory. Basically हमें theory अभी तक building material में जो हमने पढ़ा, I don't think मैंने तो अभी तक I haven't faced anything like that कि जो building material में पढ़ा है वो अभी मुझे काम आ रहा हो, या जो मैंने building construction में पढ़ा है सिवाय जो फाउंडेशन होती है उसके, आई डोंट थिंक वो अभी तक किसी के नाम आया हो. बेसिकली और कुछ भी सिखाना चाहिए. जब फर्स्ट ईयर में तो हमको इंट्रोडक्शन दे दिया, बड़े बड़े ख्वाब दिखा दी कि हाँ आप अपना दिल खोल के डिजाइन कर सकते हो. सेकेंड ईयर में आते आते आपको एक एरिया दे दिया कि नहीं आपको इसी एरिया में करना है. थर्ड ईयर में जब हम वर्किंग ड्राइंग्स भी बनाने लगते हैं तब हमारे पास आते हैं बिल्डिंग बायलॉज कि इतना एमओएस तो छोड़ना ही है, स्लैब और थिकनेस इतनी तो होनी ही चाहिए, 2 कमरों का या 2 कॉलम का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए या मैक्सिमम इतना तो होना चाहिए. जब थर्ड ईयर में आए और ये सारी चीजें पता चली तो कैसे कोप अप किया उन चीजों के साथ. यार फर्स्ट ईयर में फेल है, थर्ड ईयर में तो दुनिया ही पलट गई हमारी. यस मैम, जब ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हम लोग जब थर्ड ईयर में आए मेनली, तब ये सारी चीजें समझ में आया कि प्रैक्टिकली बनती कैसे है. फर्स्ट और सेकेंड ईयर तो पूरा हाइपोथेटिकल चीजों में ही मेनली जा रहा था कि हम ऐसा कर सकते हैं, जो अपनी फैंटेसी जो होती है आर्किटेक्चर को लेकर सारी चीजें अपन ने कर ली. लेकिन बेस जो होता है मुझे लगता है कि थर्ड ईयर इज बेस, इसके बाद ही हम चीजें आगे जाके सीख पाते हैं. अच्छा, थर्ड ईयर में आने के बाद कभी किसी पॉइंट पे ऐसा लगा क्या, पूरे 5 सालों में कभी भी किसी पॉइंट पे ऐसा लगा कि यार शिट ये चीज मुझे पता होती तो शायद मैं और अच्छे से इसको कर पाता है, ये चीज मुझे पहले से पता होती तो शायद मेरे ये 3-4 साल है जो बहुत इजी निकलते. ये रियलाइजेशन एक्चुअली नॉट थर्ड ईयर में बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटर्नशिप ये लगा कि जो थीसिस वाला पीरियड होता है वो आपका अगर इंटर्नशिप के बाद हो तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है. व्हाट आई फील, आप किसी पर्टिकुलर एक आर्किटेक्ट में काम करते हो, एक अच्छी फर्म में काम करते हो, आप उनके साथ आपका जब वर्किंग होता है आपका ब्रेन बहुत वाइड हो जाता है, बहुत ज्यादा आप जब कॉलेज की स्टडी और जो प्रैक्टिकली जो आप काम करते हो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. एंड देन उसके बाद आप कॉलेज आके जब थीसिस करते हो देन आई एम श्योर वो बहुत अच्छी होगी. वो रियलाइजेशन इंटर्नशिप के टाइम हुआ था. आई थिंक जो रियलाइजेशन की आप बात कर रहे हो वो हर एक सेमेस्टर की जूरी के बाद होता है, जब आपके जूरर आपको टोक के जाते हैं कि ये क्यों नहीं किया. एक्चुअल में हमें वो चीजें बताई जाती है बट हम उस टाइम पे उस चीज को
ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें हर एक सेमेस्टर के बाद रियलाइज होती है। हाँ फिर अपन जब थीसिस जो है अपनी यदि इंटर्नशिप के बाद हो, तो ये थीसिस एक्चुअली होती क्या है कि अपन ने जितना भी अभी तक स्टडी की है फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक की, तो उसको अपन को एक उसमें प्रोजेक्ट में डालना होता है। हाँ लेकिन वही चीज हमारी क्लियर नहीं है, हम उसमें ही डाउटफुल हैं, तो हम कभी भी 100% नहीं दे पाएंगे उस चीज में, और ये मुझे लगता है ऐसा होता है। ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी और कॉलेज के साथ डिफर करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो थीसिस जो है वो लास्ट ईयर में ऑफर करती है। पहले आपकी इंटर्नशिप होती है, फिर थीसिस होती है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पहले आपसे थीसिस कराती है, फिर इंटर्नशिप कराती है, जैसा कि हमारी यूनिवर्सिटी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो शायद हर यूनिवर्सिटी के साथ डिफर होती है, वो ये है कि डिजाइन प्रॉब्लम्स और हमारी डिजाइन को कैसे जज किया जाए। ऑफ कोर्स हर दूसरे आर्किटेक्ट का, डिजाइनर का थॉट प्रोसेस अपनी डिजाइन को लेकर बहुत डिफरेंट होता है। मेरा डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, और हमारे सबके डिफरेंशियल जो थॉट प्रोसेस है उसके साथ क्लाइंट का तो मैच होना बहुत ही मुश्किल होता है। उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ होती है, और टेक्निकली एस्थेटिकली सब कुछ हम कंबाइन करके कुछ और ही प्रेजेंट करते हैं। तो जो कॉलेज में होते हैं और हम अपनी डिजाइन अपनी फैकल्टी को या जूरी को प्रेजेंट करते हैं, तो डू यू थिंक, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट, कि क्या हमारी डिजाइन किसी को जज करनी चाहिए, और क्या हमारा डिजाइन का एग्जाम भी होना चाहिए? क्या हमारे एक पर्टिकुलर इंसान है जो 40 बच्चों की डिजाइन जज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमको पास या फेल कर रहा है? आई मीन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि लोग डिजाइन के एग्जाम में फेल होते हैं। आई एम वन ऑफ दोस पीपल who failed in my design exam. This was very surprising to me, but I actually did. I failed in my design exam in my second or third semester, I guess. लाइक यू मेंशन कि सबका डिजाइन स्टाइल डिफरेंट है, एंड डिजाइन को आप मतलब जो डिजाइनिंग एस्पेक्ट है, डिजाइनिंग पार्ट है, उसकी बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते। हाँ, कुछ टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं कि टेक्निकली वो साउंड ना हो डिजाइन, या कुछ उसमें लैग हो, वो आप उस बेसिस पे जज करो, दैट इज वेल एंड गुड। बट जो सिर्फ कोर डिजाइन है या सिर्फ कोर कंसेप्ट या कोर डिजाइन है, so the judging on that criteria, I don't feel that is a good point. Of course. So that was actually my point, कि क्या डिजाइन किसी को जज करनी चाहिए हमारी डिजाइन? ऑफ कोर्स योर एक्सपीरियंस, आई आई डोंट नो, नो। मे बी आपका डिजाइनिंग जो पैटर्न है मेरे से, शायद क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है तो मैं शायद थोड़ा मैच्योर डिजाइन करूंगी, आप अभी भी उस प्रोसेस में हो। मेरे जो सीनियर्स हैं शायद उन्हें लगेगा मेरी डिजाइन अभी भी इमेच्योर है। It comes with experience, it comes with time, it comes with practice. Everything, every particular thing in this world, if you want to improve it, you have to practice it. क्या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के बच्चे की डिजाइन, बच्चा, I'm using the word बच्चा because actually we were students back then, हम बच्चे ही थे, we were not sound with every technical thing or every design aspect. तो ये चीज क्या चेंज होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या डिजाइन को जज करने का प्रोसेस, डिजाइन जो भी हमारा आके जज करे इज अ डिफरेंट थिंग, और जो एग्जामिनर जो मार्क्स देता है हमारी डिजाइन पे इज अ डिफरेंट। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? नो मैम, मेरे हिसाब से तो जज नहीं करना चाहिए डिजाइन को, क्योंकि डिजाइनिंग एक एक्सपीरियंस के साथ डिजाइन इवॉल्व होता है। आर्किटेक्चर में हम अभी भी सीख रहे हैं, आने वाले 10 साल बाद भी हम सीखेंगे ही, कभी ना कभी। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम पूरी तरीके से आर्किटेक्चर को सीख चुके हैं। तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो हमेशा चलती रहेगी, और जो डिजाइन का एक तरीका है, एक जो हमारा टेस्ट है, वो हो सकता है कि चेंज होता रहे, लेकिन जो हमारे कुछ कंसेप्ट चलते हैं, जो कुछ थॉट प्रोसेस है, वो भी समय के साथ चेंज हो सकती है। इसमें कोई उसमें ऐसा नहीं है कि हम उस चीज को आज बोल रहे हैं कि परफेक्ट है और आने वाले 10 साल बाद भी हम उस चीज को परफेक्ट बोलें। हाँ, ऑफ कोर्स, ये बात एकदम सही है। मतलब आई आल्सो फील कि डिजाइन शुडंट बी जज्ड बाय एनीवन, एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। यार आपको और मेरा डिजाइन है तो आपको तो 50 मिल गया, मैं तो 10 नंबर पे गई। एंड एक्चुअली वी नेवर गेट अ वैलिड रीजन कि हमें
आउट ऑफ 100 ये मार्क्स क्यों मिले? क्योंकि जब हम कॉलेज में डिजाइन करते हैं टेक्निकलिटी कुछ नहीं होती, उस वक्त टेक्निकलिटी नहीं होती, 2-3 दिन तक बैठ के हम डिजाइन करते हैं, हम ड्राफ्ट करते हैं, हम उसको सुंदर बनाते हैं, हम उसमें कलर करते हैं एंड एवरीथिंग वैनिशेस। जब आपको 50 में से सिर्फ 20 नंबर ही मिलते हैं तो दैट हर्ट्स, दैट रियली हर्ट्स। जैसे कि आज हम किसी क्लाइंट को अपना डिजाइन प्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट बोलता है मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, दूसरा चाहिए। अभी ठीक है, देयर आर पीपल, देयर आर मेनी क्लाइंट्स जो हमारे पास पिंटरेस्ट की इमेज लेके आते हैं और बोलते हैं मुझे तो ऐसा ही बनाना है। तो जब आपका एक्सपीरियंस क्या है जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है ये लेके कि पिंटरेस्ट की इमेज, कोई फर्नीचर की या कोई इंटीरियर फॉर्म लेके आता है कि मुझे ना मेरा बेडरूम ऐसा चाहिए, कलर मुझे एग्जैक्ट ऐसे ही चाहिए, चाहे वो शेड कार्ड में हो या ना हो, पर मुझे कलर यही चाहिए। तो इन क्लाइंट्स के साथ आप कैसे डील करते हो? Whenever clients such come to us, so what we try to do is we try to educate them, educate like there's a particular scale to everything, like वो फर्नीचर किस स्केल पे रखा है, कहाँ पे है, किस स्पेस में, आपका घर कितना छोटा है, कितना बड़ा है, एंड उस एम्बियंस में, उस एनवायरनमेंट में वो क्या वो फिट बैठ रहा है। एंड हम लोग टोटली डिनाई कट ऑफ नहीं करते उनके जो भी अगर वो पिच लेके आ रहे हैं या कुछ रेफरेंस लेके आ रहे हैं। what we get is some idea of their thought process, what they are actually looking for, and we try to inculcate our ideas and our design style in that particular reference. We are taking this reference as a reference only. हम लोग उस चीज को एज अ रेफरेंस ही लेके ट्राई करते हैं कि उनका टेस्ट समझ सके हम कि वो क्या चाह रहे हैं, तो उसको अपने तरीके से डिजाइन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। That's very nice. So, as you guys have been graduated recently and you started your firm, it was great. What were the milestones or what were the hindrance that you got when you started your firm? क्या प्रोसेस था, क्या थॉट प्रोसेस जा रहा था, क्या सोच के नया फर्म चालू किया था? क्योंकि honestly, building up a firm, setting up a firm, working in a firm is a bit much. It requires your mental, physical, also your economical power. Everything you need because you have to set up an office, right? वो office set up करने में, एक चीज set up करने में, you require a manpower, you require a lot of money. How did you manage that? Like I mentioned, we haven't thought to start our firm this early, but during the lockdown we got some projects and we thought of doing that together, and eventually मतलब अब लगता है कि हाँ मतलब फिर सोचा हम लोग ने कि हाँ कर लेना चाहिए स्टार्ट, it's a good time, we are getting some projects. So that was the reason Space Goals happened, and now we are we are running a good number of projects right now, and we are happy that we thought of starting this early. But ये है कि बहुत लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि इतनी जल्दी स्टार्ट किया, क्यों किया, कैसे किया, और एक्सपीरियंस, बट लाइक एक वो कॉन्फिडेंस की बात है, एक आप अगर प्रोजेक्ट डील कर पा रहे हो, प्रोजेक्ट आप लेके आ पा रहे हो, आप काम कर पा रहे हो, सक्सेसफुली उसको हैंड ओवर कर पा रहे हो, then why not start? And it's a very subjective question I see, and if you are starting, if you have the confidence to start your own firm, your own practice, then you should carry on with it. हाँ जी, ये जो क्वेश्चन था कि why you start too early, ये क्वेश्चन दूसरों के पूछने से पहले सबसे पहले ये हमने आपस में ही पूछा था अपने आप कि हम स्टार्ट इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि इट्स अ लर्निंग, जैसा मैंने आपको बताया अभी, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। हमने आपके जो लोकल आर्किटेक्ट्स हैं जबलपुर के, उनसे भी बात करी इस बारे में, हमारे जो सीनियर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, कभी उनसे भी इस बारे में हमारी बात हुई है, तो उसका भी मतलब यही रहता है कि आप लोग एक लर्निंग प्रोसेस में हैं। अभी हम अपने वर्क से ही जो हम कर रहे हैं उसमें ही हमें हर वर्क में कुछ ना कुछ चीजें हमारे अंदर ही चेंजेस दिख रहे हैं, और ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे वो चीजें डेवलप होंगी जो हमारा और डिजाइन स्टाइल है।
तो ये यदि हम अभी करें या 5 साल बाद करें वो True that. I also feel if you're getting work, अगर एक sufficient amount of projects आपके पास आ रहे हैं, why not to give the back end and जो टीम उसके लिए काम कर रही है उस टीम को नाम देना बहुत जरूरी है. I started my firm very early. People questioned me a lot. I have done a lot of things after I graduated. I started this YouTube channel and people actually questioned me, तू क्या कर रही है? People actually bitched at my back, ये क्या कर रही है? She's not doing good. अरे, I am not doing good, but at least I'm doing. I'm trying. I'm trying to make a step. I'm trying to do something for myself. So, like earlier we were talking before recording this video that I'm actually very proud of you guys that you started so early. Not everyone has that courage to do. Not everyone takes that risk to start a firm because not just starting a firm, but you're risking your and the firm's name. जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, जब आप एक इंडिविजुअल एक फ्रीलांसर की तरह करते हो, आपको जनरली कोई जानता नहीं. But if a firm's name is associated with a particular project, your name, fame, everything is at risk. अगर वो project अच्छा रहता है, you'll get name, शाबाशी मिलेगी. But if a single minute mistake is there, 10 लोग आपको बोलेंगे, इसने क्या है? She is not doing a good work. Let us not go to that person. Let us not go to that firm. So it's really good that you started so early. You've got a sufficient amount of experience with it. And I really wish, and I actually wish you very good luck and success in your life. And please do such more work. And let us end this conversation with a very good note and a message from you guys. There are many students out there. There are many people who have graduated 3 years, 4 years from their, you know, 3-4 साल हो चुके हैं उनके graduation के, but they don't have a courage to start their firm. I want you guys to just encourage those people. Take out a few words for them and tell them why they should start their firm and how they should start their firm. Like हमारे फ्रेंड सर्कल में भी एंड इनफैक्ट ओवरऑल सभी जगह आर्किटेक्चरल फैकल्टी में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको या तो एक जॉब ओरिएंटेड लोग होते हैं जिनको सिर्फ पता रहता है कि हाँ दे कांट डू दैट थिंग और दे कांट स्टार्ट देयर ओन आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस एंड देयर आर सम पीपल हु want to start their architecture practice but are not sure when to start. So like if you are that second category, if you want to start your own practice and you know if you are getting some projects, then don't say no to them. Slowly start doing start taking those projects, and if you feel that you are doing good like individually you are doing good, then you should give a chance to yourself and you should start your practice, your design practice. You are confident enough to fit in. One last question. What was your first project? You two together. What was the first project जो आपने साथ में किया? How was it like? What was the problem you faced? Also tell me this also. जो पहला project था, क्या उस client ने आपको ये नहीं बोला या ऐसा उसे feel नहीं हुआ कि यार I'm giving my first project to a bunch of young guys, a bunch of young architects who experience नहीं, because this happens in our industry. Say it a job or individual project जहाँ लोग आपको बोलते हैं you're very young, you're not experienced for this. So how was your first project which you did? The first project which we got was a elevation project, the House of Straight Lines, which we have named it. They actually named our project like this. So the first project was House of Straight Lines. That was just an elevation project. And like you mentioned कि आपको एक्सपीरियंस नहीं, बट ये सब चीजें तो नहीं हुई. हमने ये जरूर बोला कि हमारा काम करो, आपको और काम मिलेगा. ये खैर अभी भी बोलते हैं लोग. एक्चुअली वो एक न्यू साइट बन रही थी जहाँ पे बहुत सारे प्लॉटिंग हुई थी, तो उनका फर्स्ट ही घर था उस सोसाइटी में. तो उन्होंने हम लोग को बोला था कि आप हमारा प्रोजेक्ट करिए और हम आपको लाइन से पूरे प्रोजेक्ट दिलवाएंगे. क्या वो आपके रिलेटिव थे? फ्रेंड थे पापा के.
Did you guys get paid for that job? Yeah, we get paid, but not what we have demanded. I, But yeah, we got paid. We got. of course, any relative would come to you and say, "यार तो बात है पैसे क्या दें?" So when It was I nice. It was nice. when I initially started, I did a couple of projects for free. Not one or two, but a couple of projects for free. And then I realized, नहीं यार, this is not working like that. कहाँ तक मैं ये सोचती रहूँगी कि यार नहीं आपको आगे काम मिलेगा, आपको नाम मिलेगा, mouth publicity होगी. That actually does not happen. So you have to work for something that you get paid off. So later when I realized नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, पैसे तो लेने ही पड़ेंगे, and I started asking for money. I still remember I've done 2 projects like that where I still haven't get paid. मतलब they said कि हाँ देंगे. I have demanded a particular amount, जिसमें मैंने 100 रुपए मांगे, पर मुझे मिले उसके 20 रुपए. ये बोल के कि बाकी 80 you'll get. I've done a commercial project. It was a really good project, and that person said कि यार अभी ना शॉप नहीं चल रही है, यार अभी ना प्रोसेस में है. मतलब he was someone very close to me and he did that. It was very disheartening because हम हमारे पहचान वालों के, हमारे relatives के, friends के काम करते हैं, we start doing it. I've done 2 projects for my friends. I mean, friends are those people who understand me, but they were those people who never paid me, not even a penny, not even a penny. I've done a whole work and they said, यार हमें तो लगा कि तुम हमारी दोस्त हो, what such? I said, dude, this is my bread and butter. This is I do for a living. Why will I help in this? But eventually then I stopped and ignored most of the relatives' phone call just because मुझे free का काम अपने नहीं करना है. And I actually suggest many people who come to me, many young architects who come to me saying ऐसा ऐसा, and I said मत कर, काम ही मत कर, पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि. So this is what I wanted to know कि आपका पहला project and House of Straight Lines. When I looked that project, it was a very tempting thing which came to me. And the wo dekha, and I told one of my friends that, see, these are my juniors, they're doing such a great job, such a fantastic job. And I was really happy. And this is also a thing that when you are so much creative, you make that small project such big. लोगों की आंखों में दिखता है वो कि भाई बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं. So it's really good कि ऐसा हो, अच्छा है, ऐसा लोगों को सोचते रहना चाहिए. Okay, so now we've come to an end to this conversation. It was really good talking to you. Just one last thing. Do you have anything? Do you guys have anything to say to those kids who are going to appear for the entrance exam for architecture? Do you have any कुछ हिदायत देनी हो बच्चों को कि बेटा यहाँ आने से पहले ये तो कर ही लेना, या ये तो ध्यान रखना है जब आर्किटेक्चर स्कूल में आ रहे हो तो? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जो भी स्टूडेंट आना चाह रहे हैं आर्किटेक्चर में, थोड़ा सा प्लीज स्टडी करें आर्किटेक्चर के बारे में, जो आई थिंक हमने नहीं करी थी. तो वो चीज होना बहुत जरूरी है. और थोड़ा सा प्रिपेयर रहें कि आपको अपनी नाइट्स को छोड़ना पड़ेगा, सो नहीं सकते आप आगे चल के बहुत सारे टाइम तक, और बहुत ज्यादा हार्डवर्क है और इनिशियल सक्सेस नहीं है. ये मैं अभी भी बोलूंगा कि हम 5 साल की डिग्री करने के बाद भी अभी भी अपने आप को सेटल नहीं बोल सकते. इवन जो हमारे साथ में जो इंजीनियरिंग वाले जो दोस्त हैं या फ्रेंड सर्कल्स के थे, वो अभी से ही एक प्रॉपर सैलरी बेस्ड जॉब कर रहे हैं, बट वी आर नॉट लाइक दैट. तो यही है कि मेहनत करने से नहीं डरो और अपना काम करते जाओ. That's really good. That's really good. Of course, initially success किसी को भी नहीं मिलता. आर्किटेक्चर में तो वैसे भी थोड़ा लेट, हम तो वैसे भी आर्किटेक्ट्स आर एक्चुअली वेरी लेट. जहाँ लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, हम ग्रेजुएशन की कर पाते हैं. We invest 5 long years in architecture. One quick last question. अगर आपको मौका मिले तो क्या आप वापस से 5 साल पढ़ना चाहेंगे? सॉरी, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप वापस से 5 साल आर्किटेक्चर पढ़ना चाहेंगे?
हम लोग बहुत मतलब कई बार ये बात करते हैं कि मतलब हम लोग जो प्रोसेस अब सोचते हैं कि यार ऐसा पढ़ाना चाहिए था, तो ये डेफिनेटली वो 5 साल हम लोग वापस इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन जो हम लोग जैसा पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली वैसा नहीं, हाँ, लेकिन जिस प्रोसेस में हम लोग चाहते हैं कि यार ऐसा पढ़ाना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था, तो यस बिल्कुल। वी आर वेरी रेडी टू इन्वेस्ट another 5 years and enjoy the college life. another 5 years investment into architecture. Oh my That is practically not possible, but yeah, but we will definitely love the process that should be changed in the curriculum. guys, so this was a good advice to the young kids who will be entering architecture school. So here presenting space goals, architect Gaurav and architect Siddhar in front of you. They've given you many advice. Hope that will be useful to you. And thank you so much for coming to the talk show and solving many queries of the young kids coming into architecture. Thank you so much. Thank you so much, Maya, for having us. So,